Good afternoon, everybody. So, we are doing that chapter, material cost. We have already completed 5 questions. Now, next area that we have to discuss in this chapter is something called as stock levels. Okay, at the start of the chapter, we had discussed that there are few decisions that company has to take regarding materials. First one is how to purchase. So answer to how to purchase is here. That is material procurement procedure. पूरा procedure follow होता है for purchasing raw material. Then we already answered this question. How much quantity of raw material to purchase? In fact, how much quantity of raw material to purchase में it is how much quantity of raw material to purchase annually and how much quantity of raw material to purchase at a time. So generally when there is no quantity discount, what is the answer to the question how much quantity of raw material to purchase at a time? EOQ. Because at EOQ total relevant cost is minimum. What is definition of total relevant cost? It is total ordering cost per annum plus total carrying cost per annum. However, there are few questions जहाँ पे we have seen that there are quantity discount. So when there is quantity discount, again decision cost के basis पे ही लिया जाएगा. But what is the definition of total relevant cost when there are quantity discounts? That is total purchase cost plus total ordering cost plus total carrying cost. Only thing is when there is discount, total purchase cost also becomes relevant. So that is what we answered. Now the next question that we are answering today is when to purchase. ये क्वेश्चन को let us और let me elaborate a bit. मतलब when to purchase मतलब at what point of stock level order should be placed. मतलब हमारा स्टॉक कितना यूनिट्स पे पहुंचेगा तब हमको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए. इन सिंपल लैंग्वेज व्हेन टू परचेज. उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. ये एग्जांपल में वी रिक्वायर 2 थिंग्स. नंबर 1, कंपनी को है ना 2 चीज चाहिए. First, company has to estimate something called as consumption per day. Consumption per day बोलो या requirement per day बोलो. In simple language, company requires how many units per day? So company requires 12 units per day. If you remember, raw material is issued from which department to which department? Stores department to production department. Where does raw material get consumed? Production department में consume होता है. तो production department को अगर raw material चाहिए, production department will requisition raw material from which department? Stores department. You remember what is the name of the note that production department will prepare? Material requisition note. MRN. क्या बोलते हैं उसको? अरे full form बोलो, MRN मत बोलो. What is the requisition note? मटीरियल रिक्वेजिशन नोट. ये सब आगे के चैप्टर में भी आएगा. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट को बोलेगा हमको मटेरियल दो, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट बोलो को मटेरियल इशू करेगा. तो कंपनी और फैक्ट्री और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट व्हाटएवर दे हैव एस्टिमेटेड दैट वी रिक्वायर 12 यूनिट्स पर डे. मतलब 12 यूनिट्स पर डे एवरी डे. लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे हाउस में भी, इन योर हाउस योर मदर मस्ट बी नोइंग हाउ मच इज कंजम्पशन पर डे. देयर आर सो मेनी मटेरियल इन योर हाउस दैट योर मदर इज यूजिंग. तो अगर तुम जाके उसको पूछेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर चीज का कितना यूनिट्स केजीज या चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल एवरी हाउस होल्ड में मिल्क पर डे का कंजम्पशन नॉर्मली सेम ही होता है.
So 1 liter per day, of course depending upon the person, consumption, etc. So from past experience वो लोग को पता होता है कि भाई हर डे हम लोग को इतना consumption चाहिए. Second thing that the company has to know, what is something called as lead time. What is meaning of lead time? Lead time is the time gap between placing the order and receiving the order. Like तुम ऑनलाइन एक्सेट्रा भी परचेज करते हो तो दे विल से 3 वर्किंग डेज, मतलब तुम आज ऑर्डर प्लेस करो तो 3 डेज लगेगा वो ऑर्डर आने के लिए. इट इज नॉट दैट कि तुमने सुबह को ऑर्डर किया शाम को आ जाएगा, इंस्टेंट ऑर्डर एक्सेट्रा. तुम बोलेंगे नहीं अभी आजकल तो वो भी पॉसिबल है, तो कंपनी में फैक्ट्रीज में वो पॉसिबल नहीं. फिर रिमेंबर एंटायर मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, ये पूरा जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था, दिस विल टेक सम टाइम. तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज विच टाइम, lead time, or simple language में it is called as delivery period. What is it called as? Delivery period. And there is something called as ROQ. What is full form of ROQ? OQ का तो full form हमको पता है. What is OQ? Order quantity. What is R का full form? It is called as reorder quantity. ROQ is called as which quantity? Reorder quantity. This is a quantity that every time you will reorder. मतलब हाउ मेनी यूनिट्स का ऑर्डर कंपनी इज गोइंग टू प्लेस, उसका आंसर कंपनी या फैक्ट्री के पास ऑलरेडी है. आई रिपीट, हाउ मच यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट अ टाइम, उसका आंसर ऑलरेडी है. राइट नाउ वी आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी ऑर्डर्ड एट अ टाइम. राइट नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन दैट वी आर आंसरिंग? व्हेन टू प्लेस दैट ऑर्डर. कितना ऑर्डर करने का है वो पता है, कितना ऑर्डर करने का है वो डिस्कशन नहीं है, वो तो लास्ट 2 लेक्चर से कर रहे थे हम लोग. आज हम लोग क्या क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं? व्हेन टू ऑर्डर. ये 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कब करने का, कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करने का, दैट वी नो दैट वी टू प्लेस 200 यूनिट्स का ऑर्डर, बट व्हेन टू प्लेस दैट ऑर्डर, उसको मैंने और थोड़ा इलैबोरेट में लिखा है, दैट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टॉक लेवल at which the order should be placed. To understand or to explain this point, the best way to understand is by way of a diagram. तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. See, first of all I am explaining in point of a diagram, मतलब ग्राफ, x axis y axis, but try to visualize. रॉ मटेरियल फैक्ट्री में कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगा. तो कहाँ पे स्टोर होता है रॉ मटेरियल? स्टोर्स डिपार्टमेंट, वो मुझे पता है. मैं कहाँ पे स्टोर होगा मतलब किस में स्टोर होगा वो पूछ रहा हूं. अरे जगह नहीं पूछ रहा हूं, मतलब कहाँ पे स्टोर होगा वो पूछ रहा हूं. अरे बैग में स्टोर होगा, कंटेनर में स्टोर होगा, थैली में स्टोर होगा, डब्बे में स्टोर होगा, रूम में स्टोर होगा. ऐसा स्टोर रहेगा ना किधर, कैसे ही पड़ा रहेगा जिधर मांगता है उधर रॉ मटेरियल. तुम्हारे भी घर पे किचन में हर एक का अलग डब्बा होता है ना, कि सब सार्वजनिक, सब ऐसे खुला पड़ा रहता है, जिधर मांगते हैं हाथ डालो ऐसा निकाल लो. इज इट लाइक दैट? नो, इट इज क्लियरली देयर इज सम प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड. यस और नो? जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर होता है उसको ये लोग ने ये सब्जेक्ट में क्या बुलाया है? बिन. कभी सुना है ये बिन? यस और नो? हाँ, हम लोग ने ये बिन एक ही वर्ड के साथ सुना है, डस्टबिन, लेकिन ये वो हाँ वही बिन है. बट बिन मतलब देयर इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड. अब ये बिन डब्बा हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, इट कैन बी अ room also, it can be a floor also, depending upon what is the quantity of raw material and type of raw material. रेफ्रिजरेटर में कोई स्टोर होता है, तो सब अलग अलग टाइप का स्टोरेज होता है. एनीवेज, राइट नाउ you visualize this diagram as a container. Say for example, ये y axis है, ये x axis है. ऐसा similar diagram मैंने last time भी prepare किया था. Y axis is showing what? Stock level, and of course it is in units. And x axis is showing what? Time, जो days में है. It is easier to understand and faster. So, of course, say for example, just example, you can take any figure. I am just assuming कि मेरा stock level at present is 176 units. Just example, I have taken random figure. मतलब अगर तुम कंटेनर खोल के देखोगे या डब्बा खोल के देखोगे, उसके अंदर 176 यूनिट्स रॉ मटेरियल का ऑलरेडी पड़ा है.
नाउ कैन यू टेल मी डे बाय डे ये 176 यूनिट्स बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा कि सेम रहेगा? कम होते जाएगा. दिस विल गो ऑन रिड्यूसिंग बाय हाउ मेनी यूनिट्स पर डे? 12 units per day because every day का consumption is how much? 12 units. तो ये 12 units से कम होते जाएगा. So now the question is at what point of stock level order should be placed? Yeah, next order should be placed. Should we allow this 176 to fall to 0 and then place the order? Why no? ये 0 पे प्लेस हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों? नेक्स्ट डे तो आ जाएगा ना रॉ मटेरियल. नहीं, रॉ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विच टाइम? लीड टाइम. ये तुम चेक करो, तुम्हारे घर पे भी होता ही रहेगा, तुमको भी नहीं पता रहेगा, मदर को पता रहेगा. जैसे ही डब्बा खोलेंगे वो लोग आंखों से देख लेते हैं कि नाउ ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड. दे विल नॉट अलाउ द मटीरियल और इंग्रेडिएंट या व्हाटएवर टू फॉल टू 0. अच्छा, घर पे प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज लीड टाइम इज 0. क्यों लीड टाइम इज 0? तुमको फोन या मैसेज आ जाएगा आते आते ये लेके आ. बट फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विच टाइम? लीड टाइम. यहाँ पे तो मैंने लीड टाइम डेज में लिखा है. समटाइम लीड टाइम्स कैन बी इन वीक्स. इमेजिन यू आर इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल, तो इंपोर्ट करने में यू डोंट टेक 3 4 5 डेज, इट कैन गो इनटू वीक्स. 3 4 5 6 वीक्स लगेगा रॉ मटेरियल आने के लिए. या दूसरे कोई स्टेट में से भी मंगा रहे हो, दूसरे कोई स्टेट में से ट्रांसपोर्ट में से मंगा रहे हो, तो उसमें भी 10 12 15 दिन लगता है. एनीवेज, right now we are discussing that if the lead time is 5 days, so factory cannot afford to allow this stock level to touch to 0 and then place the order. Yes or no? तो can you tell me, तुम्हारे हिसाब से ये 176 कितना यूनिट्स को टच करेगा तब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? वेरी सिंपल आंसर, मैथमेटिकल. 60 यूनिट्स. Yes or no? What is 60? How did you get 60? 12 into 5. What is 12? अरे watt per day. Consumption per day. And what is 5? Lead time in days. तो ये जो 60 तुमने कैलकुलेट किया ना, इसको बोलते हैं consumption during lead time. What is this called as? Consumption during lead time. दूसरा तरीका समझने का, कहना है 60 is 5 days का स्टॉक. मतलब हम क्या करेंगे, डब्बा खोल के देखेंगे. डब्बा खोल के देखेंगे, जब 5 दिन का स्टॉक बचा रहेगा ना, तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. यस और नो? सो दैट आई हैव 5 डेज का कंजम्पशन विद मी, ताकि 5 डेज तक तो मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम कर सकूं. क्योंकि अगर मैंने ऑर्डर किया, मेरे पास 5 डेज का कंजम्पशन है, तब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा. मतलब जब मेरा ये 176 कितना यूनिट्स को टच करेगा? 60 यूनिट्स को टच करेगा. ये पॉइंट पे क्या होगा? ये पॉइंट पे क्या होगा? ऑर्डर विल बी प्लेस्ड. ऑर्डर विल बी प्लेस्ड. तो जैसे ही 5 डेज होगा, तो मेरे पास 5 डेज के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए है मेरे पास. तो जैसे ही वो 0 पे आएगा, मेरा नया ऑर्डर आ जाएगा. अच्छा, ये पॉइंट पे यू विल प्लेस ऑर्डर फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 200. राइट नाउ द क्वेश्चन इज नॉट हाउ मच टू ऑर्डर, कितने यूनिट्स को ऑर्डर करने का, उसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 200. प्रोबेबली इट विल बी ईओक्यू, बट इट इज नॉट ऑलवेज ईओक्यू, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है ईओक्यू इज ऑलवेज क्यू, बट क्यू इज नॉट ऑलवेज ईओक्यू. सो हो सकता है मेरा ईओक्यू या आरओक्यू रादर, दैट इज री ऑर्डर क्वांटिटी. बेसिकली अगर कोई पूछेगा ना ये क्या है, ये हमारा क्यू है, तो क्यू का भी आरओक्यू है. आरओक्यू एंड ईओक्यू मे नॉट ऑलवेज बी द सेम. वेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. चलो, नाउ ये 60 पे आया, तो हम लोग ने ऑर्डर प्लेस किया. नाउ मुझे एक फॉर्मूला बनाना है. कैन यू टेल मी, ये 60 का हम लोग ने एक नाम रखा था, इट इज कॉल्ड एज व्हाट ड्यूरिंग व्हाट? कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम. बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला? कंजम्पशन व्हाट? पर डे. अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा तुमको पर डे देंगे, वो लोग कभी कभी तुमको कंजम्पशन पर वीक देंगे. जनरली दे विल नॉट गिव यू मंथ्स, इट विल बी आइदर इन डेज और इन वीक. सो कंजम्पशन पर डे, व्हाटएवर. राइट नाउ मेरे एग्जांपल में डे है, तो मैं डे लिख रहा हूं. मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? लीड टाइम. ये लीड टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट?
What is lead time, by the way? वापस से एक बार याद करो. What is lead time? Lead time is a time gap that is taken between placing the order and receiving the order. मैं place करूंगा order और order मिलेगा, उसके बीच में time gap होगा. ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम लोग आज के बाद बुलाएंगे something called as reorder level. इसका short form is ROL. What is this? Reorder level. Reorder level is answer to which question? When to purchase. मतलब very simple formula. It is what multiplied by what? Consumption per day multiplied by lead time in days. This is what is the formula for reorder level. This is what the formula we will use. अच्छा, अब ये जो formula है ना, will be used when there is certainty. When there is what? What is meaning of certainty? मतलब कंपनी knows कि 12 यूनिट्स ही लगेगा. There is certainty. For example, हमको पता है हमारे घर में 1 लीटर दूध ही लगेगा पर डे. सर्टन है ये. एंड लीड टाइम इज ऑल्सो सर्टन, मतलब 5 days ही लगेगा. बट ऐसा जरूरी नहीं है. एवरी टाइम देयर इज सर्टेनिटी, देयर कैन बी अनसर्टेनिटी. लाइक फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर कभी तुमने ऑनलाइन एक्सेट्रा देखा है, तो वो लोग लिखेंगे दैट इट विल टेक 3 to 5 वर्किंग डेज या 6 to 8 वर्किंग डेज, 10 to 12 वर्किंग डेज. तो वो लोग तुमको एक रेंज देते हैं. तो वैसे ही रॉ मटेरियल आने के लिए 4 days भी लग सकता है, या ज्यादा से ज्यादा कितना है, 6 days भी लग सकता है. तो 4 days is called as which lead time? 6 days is called as which lead time? So 5 days is going to be called as average lead time. So हम लोग के पास 3 प्रकार का लीड टाइम है. वन इज मिनिमम, वन इज मैक्सिमम एंड देन इट इज एवरेज. मतलब सिंपल लैंग्वेज में 4 days भी लग सकता है कम से कम, या लीस्ट मिनिमम 4 days, मैक्सिमम 6 days, ऑन एन एवरेज इट इज 5 days. अच्छा, बाय द वे ये 4 days, 5 days, 6 days ये सब कहां से आया? हाउ डिड द कंपनी कम टू नो 4 days, 5 days, 6 days? सप्लायर से बात करोगे, या फॉर एग्जांपल फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस. तो पास्ट एक्सपीरियंस से इतने साल से रॉ मटेरियल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, सो यू नो. तो जैसे लीड टाइम में मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज होता है, वैसे कंजम्पशन में भी तो हो सकता है. कंजम्पशन में मिनिमम कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम कंजम्पशन 14 यूनिट्स पर डे. ये भी तो पॉसिबल है. एंड एवरेज कंजम्पशन इज 12 यूनिट्स पर डे. सो नाउ मेरे एग्जाम्पल में हम लोग ने एडिशनल डेटा दिया. पहले वाले डेटा में क्या था? ओनली 12 यूनिट्स पर डे एंड 5 days. देयर वाज सर्टेनिटी. विद सर्टेनिटी कंपनी नोस कि भाई वी विल रिक्वायर ओनली 12 यूनिट्स पर डे एंड इट विल टेक 5 days. मतलब सप्लायर से हम लोग ने एग्रीमेंट कर लिया रहेगा 5 दिन, मतलब 5 दिन. यू विल नॉट टेक 6th डे. तो बोले हाँ ठीक है, चलो डन. भाव मेरा, लेकिन डेज हम लोग नक्की कर लेते हैं. विद इन 5 days यू विल गेट द रॉ मटेरियल. Example. So with certainty company knows, and consumption per day is also 12. This is certain. But of course in majority of the time there will be uncertainty. So minimum 10 units per day, maximum 14 units per day. अब ये सिचुएशन में मुझे क्या कैलकुलेट करना है? We want to calculate something called as which level. Listen, I want to calculate reorder level. पहले reorder level का basic idea समझो. What is reorder level? Will the company allow the stock level to touch to 0 and then place the order? No. तो कंपनी को पता है कि भाई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो लीड टाइम है, प्लस आई विल रिक्वायर सम कंजम्पशन और देयर इज सम कंजम्पशन आल्सो ड्यूरिंग दैट लीड टाइम. तो कंपनी ये डिसाइड कर रहा है कि भाई हम लोग को रीऑर्डर लेवल क्या सेट करना चाहिए. मतलब मेरा रॉ मटेरियल डे बाय डे कम होते जा रहा है. दिस 176 डे बाय डे इज फॉलिंग. इट विल रीच सम पॉइंट ऑफ स्टॉक लेवल at which the order should be
placed. We cannot allow this to touch to zero. If this touches zero, then that is the situation जो मैं already बोल चुका हूँ. That is called as which situation? स्टॉक आउट सिचुएशन. एंड स्टॉक आउट सिचुएशन का कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक आउट होगा, देन we don't have raw material for doing production of finished goods. Suppose for example 5 दिन के लिए raw material नहीं है, everybody is present in the factory, labor is coming into the factory, तो 5 दिन का उनको wages नहीं देगा? देगा. 5 दिन का पावर का बिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. सो 5 दिन का सुपरवाइजर का सैलरी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वेजेस, ओवरहेड्स, ये सब खर्चा तुमको लग रहा है, लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है? Raw material to do the production. If you don't do the production, then you will not be able to complete the orders on time. Orders may be cancelled. Cancellation of order will lead to loss of sales. Loss of sales will lead to loss of profit. Opportunity cost है इसका. And long term impact. It may also lead to loss of image or goodwill or reputation. So ये सब प्लानिंग एडवांस में फैक्ट्रीज करता है. तुम्हारे घर के जैसा, तुम्हारे घर पे भी होता है. मे बी यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट प्लानिंग, बट ये सब घर पे भी प्लानिंग होता है. वेयर यू ऑर्डर इन एडवांस. हम लोग नहीं रुकते हैं जब तक ये जीरो पे पहुंचेगा. दो तुम्हारे घर पे लीड टाइम इज जीरो, फिर भी ये सब कैलकुलेशन एडवांस में होता है. सो अगेन, इफ देर इज अनसर्टेनिटी, तो व्हेन देर इज अनसर्टेनिटी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन: मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन एंड मैक्सिमम कंजम्पशन. एंड इन लीड टाइम ऑल्सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीड टाइम: मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम. So now the question again is, at what point of stock level should the order be placed? मतलब ये 176 डे बाय डे कम हो रहा है. Will you allow it to fall to zero? No. अभी भी in this situation also your answer can continue to be 60. हाँ? Listen to my statement. ये situation में भी your answer can continue to be 60, but at 60 is there a risk of stock out? अगर आपने रीऑर्डर लेवल किस पे सेट किया? 60 पे. if reorder is set at 60 units, what is reorder level? I will repeatedly say reorder level, reorder level, reorder level. तो reorder level का मतलब क्या? जब भी मेरा स्टॉक लेवल उसको टच करेगा ना, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. और ये सब सिस्टम आजकल ऑटोमेटेड है. यू डोंट हैव पर्सन सिटिंग रोज एवरीडे वो बैठ के देख रहा है कब रीऑर्डर लेवल पे पहुंचेगा और मैं जाके ऑर्डर प्लेस करूं. सो एवरीथिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड. अब समझ लो एक कंटेनर है दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम. जैसे जैसे उसके अंदर कम हो रहा है, जैसे ही रीऑर्डर लेवल को टच करेगा, सीधा अलार्म बजेगा, पॉपअप आएगा. ऑटोमेटेड सिस्टम से वो लोगों को पता चल जाएगा ये रॉ मटेरियल, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रॉ मटेरियल इन द फैक्ट्री. थोड़ी बैठ के तुम एक एक रॉ मटेरियल को तुम मॉनिटर करेगा. So you don't want to incur administration cost of all these things. पुराने जमाने में होता था कि भाई एक आध दिन में रोज सुबह को देखेंगे भाई किसका रीऑर्डर लेवल पहुंचा कि नहीं. Nowadays all systems are automated. Anyways, that is not point of discussion. So मेरा क्वेश्चन ये है, ये सिचुएशन में भी you can still keep your reorder level at 60, but at 60 there is what? रिस्क ऑफ स्टॉक आउट. तो अगर कंपनी को स्टॉक आउट का रिस्क नहीं लेना है, कंपनी डज नॉट वांट टू टेक रिस्क ऑफ स्टॉक आउट. I don't want a single % risk of being out of stock. तो logically can you tell me कि हम 60 से और नीचे गिरने देंगे कि पहले ही ऑर्डर कर लेंगे? अगर मुझे स्टॉक आउट का रिस्क अवॉइड करना है तो आई विल ऑर्डर अर्लियर के लेटर. हाँ, तो वो पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो इट इज हाउ मेनी यूनिट्स गिवन इन दिस एग्जांपल? 84 is the correct answer. How did you get 84? 14 into 6. 14 is which consumption? Maximum. 6 is which lead time? Maximum. Means simple language mein you are being conservative. Because we do not want to take single % risk of being out of stock. मुझे stock out का risk ही नहीं चाहिए. I don't want to be in that situation. तो मैं क्या करेगा? I will take which consumption? Maximum. I will take which lead time? Maximum. So now मेरा reorder level का formula. Of course, this is reorder का level का formula when there is uncertainty. So when there is uncertainty, we will take which consumption? And we will take which lead time?
मैक्सिमम। तो अभी नया फॉर्मूला क्या हो गया रीऑर्डर लेवल का? What is the latest formula for reorder level? It is which consumption into which lead time. मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये फॉर्मूला के अंदर इनहेरेंट अजम्पशन है। व्हाट इज द इनहेरेंट अजम्पशन इन दिस? कंपनी डज नॉट वांट टू टेक रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। मतलब क्वेश्चन में तुमको बोलेंगे, क्वेश्चन में तुमको मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम एवरेज सब दे देंगे। ये 6 का 6 डेटा तुमको दे देंगे, बोलेंगे कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला यू विल यूज फॉर रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मतलब व्हाट इज द असम्पशन यू आर मेकिंग? तो ऑब्वियसली असम्पशन लिखने का जरूरत नहीं है, इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। रीऑर्डर लेवल में वी विल ऑलवेज कंसीडर व्हिच कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, एंड वी विल ऑलवेज कंसीडर व्हिच लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम। तो ये फॉर्मूला के अंदर इनहेरेंट एक असम्पशन है दैट कंपनी डज नॉट वांट टू टेक रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। कंपनी को स्टॉक आउट का रिस्क नहीं लेना है। दे विल ऑलवेज टेक मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सो वंस अगेन, कहा गया वो? Okay, can you tell me? We will not set this at 60. Now we will set this level at how many units? 84. What will happen at 84? 84 पे क्या होगा? Order will be placed. मतलब at 84, whenever our stock level touches 84, this point पे order will be placed. And this level is called as which level? Reorder level. So हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 60 नहीं सेट करेंगे। दो कंपनी को अगर रिस्क लेना है तो अभी भी 60 पे सेट कर सकता है, लेकिन 60 पे देयर इज अ रिस्क जो कंपनी लेने को तैयार नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ स्टॉक। व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्टॉक दैट वी हैव स्टडीड इज कॉल्ड एज रीऑर्डर लेवल। नहीं, दैट इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम मतलब वो सब कुछ कंसीडर किया है तुमने। अगर तुम उसके बाद भी बोल रहे हो कि भाई 14 का 16 होगा, तो मतलब तुम्हारे एस्टिमेशन में प्रॉब्लम है। मैं वही वो एबनॉर्मल रीजन है। हाउ कैन आई सेट और हाउ कैन आई एस्टिमेट समथिंग व्हिच इज एबनॉर्मल? आप एस्टिमेट क्या कर सकते हो? नॉर्मल कॉजेस कि एबनॉर्मल कॉजेस? तो फिर मैं ये लेवल्स कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। अबे आग लग गया तो 84 में से 4 को नहीं लगेगा, पूरे 84 को लग जाएगा। दैट इज विच सिचुएशन? abnormal situation. And by the way, 14 is also extreme. Minimum and maximum are what? Extremes. आप घर पे पूछ के देखना भाई, गो एंड आस्क योर मदर, हम पूरे दिन में या हम लोग एवरीडे कितना लीटर्स ऑफ मिल्क मंगाते हैं? तो मम्मी क्या बोलेगा मालूम है? 1 लीटर तो चाहिए। हाँ, कभी कभी 1.5 लीटर तक जा हम लोग यूज करते हैं। 1.5 लीटर इज विच कंजम्पशन? मैक्सिमम। अभी तू बोल रहा है दूध फट गया, तो उसके वजह से थोड़ी तू 2 लीटर एक्स्ट्रा या 1 लीटर एक्स्ट्रा मंगा के रखेगा। दैट इज विच सिचुएशन? एबनॉर्मल सिचुएशन। यू कैन नॉट एस्टिमेट समथिंग विच इज एबनॉर्मल। सो चोरी हो गया,
फायर लग गया, फ्लड आ गया, तो ये सब लेवल ही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप लोग. This is considered or this is being calculated under which situations? Normal situations exist. Normal situation चल रहा है. In fact, minimum and maximum is also extreme. यही मेरा next statement था. तुमने maximum 14 लिया. Does that mean it will what is going to occur frequently? चलो, let me ask other way around. What is going to take place frequently? Average. Are minimum and maximum going to take place frequently? No. मिनिमम एंड मैक्सिमम ये तो क्या एक पॉसिबिलिटी है. मिनिमम एंड मैक्सिमम हमारा पॉसिबिलिटी कि कभी कभार 14 कंजम्पशन होता है या कभी कभार 10 भी कंजम्पशन हुआ है, बट ऑन एन एवरेज 12 यूनिट्स हमारा होता है. 12 इज कॉल्ड एज एवरेज कंजम्पशन. नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 12 का कंजम्पशन होता है. तो वही हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है कि ये 84 पे टच हुआ. You should be very clear कि 84 पे क्या हो रहा है. When stock level reaches 84, what is happening at 84? Order is placed. Now let us discuss when the order will be received. There is a point of stock level जहाँ पे order receive भी होगा ना. तो can you tell me order is received? That is what we are calculating. हम लोग ने क्या किया? रीऑर्डर लेवल 84 कैलकुलेट किया. मतलब मेरा स्टॉक लेवल जब 84 पे पहुंचेगा हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे. कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आंसर ऑलरेडी मेरे पास है. व्हाट इज आंसर? 200 यूनिट्स. हाउ मच टू ऑर्डर इज नॉट द डिस्कशन. ठीक है. सो 84 पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, बट सच में क्या मैक्सिमम होने वाला है? व्हाई डिड यू टेक मैक्सिमम देन? Conservative. You are being conservative. You don't want to be in a situation of stock out. You don't want to take risk of stock out. कि 14 भी कंजम्पशन हो गया और 6 दिन भी लग गया तो भी मेरे पास 84 यूनिट्स है यूज करने के लिए. लेकिन मुझे पता है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस कि ये बहुत रेयर सिचुएशन है. इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन. तो जनरली, नॉर्मली, यूजुअली क्या होने वाला है? एवरेज होने वाला है. ओके, सो कैन यू टेल मी, दो तरीके से मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं. कैन यू टेल मी कि ये 84 में से कितना यूनिट्स कंज्यूम हो जाएगा? आउट ऑफ दिस 84 हाउ मेनी यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड एंड मेरे को मेरा ऑर्डर मिल जाएगा. मतलब कैन यू टेल मी कि ये 84 will come to how many units? This 84 will touch how many units at which order will be received? 24. मतलब ये 80 में से कितना कंज्यूम या इश्यू हो गया? 60. Because what is going to happen? Average. Maximum is extreme. It does not occur frequently. What frequently offers is average. तो ये 84 बोलो कितने पे टच हुआ? 24 पे. What will happen at 24? Order will be received. 24 पे order will be received. How many units you ordered? 200. 200 ऑर्डर करेंगे और मेरे पास 24 है तो सीधा our stock level will rise to how many units? 224. Yes or no? बोलो अगेन व्हाट विल हैपन? ये 224 डे बाय डे कितने यूनिट से जनरली कम होगा? 12 यूनिट से कम होगा. 12 यूनिट से कम होते जा रहा है. 224, 212, 200, 188, 176, 164 ऐसा करके ये कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा? व्हाट विल हैपन एट 84? ऑर्डर विल बी प्लेस. कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करोगे? 200. फिर ये 84 स्लोली 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 कौन से लेवल को टच या कौन से अमाउंट या कौन से नंबर ऑफ यूनिट्स को टच करेगा? 24. तो मेरा 200 यूनिट्स का ऑर्डर आ जाएगा. अगेन दिस 24 का जो स्टॉक है उसमें 200 यूनिट्स आ गया. विल गो बैक टू 224. सो हम लोग ने एक नया लेवल कैलकुलेट किया. दिस 24 इज कॉल्ड एज विच लेवल? मिनिमम लेवल. इसका और एक नाम है. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज विच स्टॉक. नाम में ही है. दिस इज कॉल्ड एज सेफ्टी स्टॉक. दिस स्टॉक इज केप्ट फॉर व्हाट पर्पसेस? सेफ्टी पर्पस. मतलब एक आध दिन भी अगर सप्लायर को डिले हो गया तो मेरे पास 24 यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए है. Going by my normal average consumption, 24 is 2 days का average consumption. 24 is
2 days का एवरेज कंजम्पशन सेफ्टी के लिए रखा है उसको. दिस 24 इज कॉल्ड एज सेफ्टी स्टॉक. सेफ्टी का और एक नाम है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं, ये स्टॉक को किस पर्पज के लिए रखा है, बफर स्टॉक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच स्टॉक, बेस स्टॉक. ये 4 नाम है, आउट ऑफ विच फर्स्ट 2 विल बी फ्रीक्वेंटली यूज. व्हाट आर द फर्स्ट 2 नेम्स? मिनिमम लेवल, तुमको बोलेंगे कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक या कैलकुलेट करो मिनिमम लेवल, और दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक. चलो लेट अस फ्रेम द फॉर्मूला. प्लीज टेक्स्ट बुक में मत देखो, फॉर्मूला फ्रेम करो. हर फॉर्मूला को हम लॉजिकली फ्रेम कर रहे हैं. ये 24 कैसे ढूंढा था, हाउ मच माइनस हाउ मच, 84 माइनस 60. पहले 84 कौन है, रीऑर्डर लेवल. चलो फॉर्मूला बनाओ, रीऑर्डर लेवल माइनस, हाउ डिड यू गेट 60? 60 कैसे आया था याद है? हाँ, इट इज विच कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, मतलब 12 यूनिट्स, एवरेज कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग ने 5 किया था. एवरेज कंजम्पशन पर डे, व्हाट इज 5? एवरेज लीड टाइम. ऑफ कोर्स अगर वीक्स रहेगा तो हम वहां पे इन वीक्स या वीक्स लिखेंगे, डेज की जगह वीक्स. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम लेवल. चलो बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम लेवल. पहले उसका 4 नाम बोलो. बोलो फर्स्ट वन मिनिमम लेवल, सेकंड सेफ्टी स्टॉक, थर्ड बफर स्टॉक, और बेस स्टॉक. व्हाट इज द फॉर्मूला? ROL नहीं, फुल फॉर्म बोलो. रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन पर डे इनटू average lead time in days. What is formula for reorder level? Maximum consumption per day into maximum lead time. इसके अंदर दूसरा कोई नहीं है. तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो नहीं मैं एवरेज पे कैलकुलेट करके आऊंगा. नो, you have to compulsory take which consumption and you have to take which lead time. Maximum consumption in maximum lead time, that is what you have to take for calculating reorder level. तो 2 level of stock हमारा हो गया. What is first level of stock? Reorder level. What is second level of stock? Minimum. Okay. You can in fact stay on page number 30. वो एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है ना वो सेम ही एग्जाम्पल है, खाली मिनिमम मैक्सिमम आगे पीछे हुआ है. डोंट गो एनीवेयर एल्स, यू कैन सी हियर. ओके चलो नाउ once again can you tell me if my stock level currently is at 224, this 224 will fall generally by how many units per day? 12 units. अब ये currently कितने units को टच किया है, बोलो 84 पे क्या होता है? Order is placed because 84 is called as which level of stock. The order level is answer to which question? How much to order कि when to order. तो 84 पे हमने order place किया, बरोबर है. Now listen to my question carefully. Normally क्या होता है? Normally जब मेरा stock 24 units को टच करता है तो मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव हो जाता है. yes or no? In the current example मतलब as per the experience of the company, is it possible कि स्टॉक लेवल 24 को टच किया उसके पहले वो 200 यूनिट्स मिल गया? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा होगा, but is it possible? Is there a possibility? Okay, so can you tell me कि ये जो 84 है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है. What is the possibility? मतलब ये 84 कितना यूनिट्स को टच करेगा बिफोर इट रीचेस 24 पे मेरा वो 200 यूनिट्स मुझे मिल जाएगा. 44. What will happen? 84 में से how many units will be issued or consumed? 40. What is 40? Minimum consumption into minimum lead time. If that happens, if बोला मैंने, if that happens मतलब ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हमेशा होगा. It is possible. See, ultimately there is uncertainty. अनसर्टेनिटी में तो पॉसिबिलिटी तो हम कैलकुलेट करके रखेंगे. ओके, सो कैन यू टेल मी दिस विल टच हाउ मेनी यूनिट्स? 44. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं
कि this is going to happen frequently, but this is possible. 44. How did you get 44? How did you get 44? 84. पहले कैलकुलेशन हम लोग लिख देते हैं, बाद में फॉर्मूला बनाएंगे. बोलो 84 में से तुमने क्या माइनस किया? 40. How did you calculate 40? 10 into 4. 10 is which consumption? And 4 is which lead time? ये पॉइंट पे क्या होगा जब तुम्हारा स्टॉक लेवल 44 पे पहुंचेगा? व्हाट विल हैपन एट 44? ऑर्डर रिसीव होगा, एंड जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा स्टॉक विल शूट अप टू हाउ मेनी यूनिट्स? इट विल गो टू हाउ मेनी यूनिट्स? 244. दिस 244 कैलकुलेट करने के लिए 44 में तुमने क्या ऐड किया? 200 ऐड किया. यस और नो? सो 84 जस्ट फॉर फॉर्मूला पर्पसेस प्लस 200 माइनस ये ब्रैकेट. 244 is called as maximum level. 244 is called as which level? What is meaning of maximum level? Maximum level does not mean कि every time your stock will reach to that level. Maximum level मतलब तुम्हारा stock 244 तक जा सकता है in the current situation. Why will any company calculate maximum level? Company wants to decide the size of the stores. मुझे क्या डिसाइड करना है कि मैं स्टोर्स का साइज क्या रेंट पे लूं? अभी आई कैन नॉट टेक द स्टोर्स विच कैन स्टोर 500 यूनिट्स. वाई? क्योंकि मेरा स्टॉक कभी भी 244 के ऊपर जाने ही नहीं वाला है. वाई विल आई टेक अ स्टोर्स ऑन रेंट विच कैन स्टोर 500 यूनिट्स? सो वी कैलकुलेट विच लेवल ऑफ स्टॉक? मैक्सिमम लेवल. चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं. 244 कैसे ढूंढा हम लोग ने? मैंने कैलकुलेशन लिख दिया है. व्हाट इज 84? रीऑर्डर लेवल. सो दिस इज कॉल्ड एज विच लेवल ऑफ स्टॉक? मैक्सिमम लेवल. ओके, फॉर्मूला बनाओ. व्हाट इज 84? रीऑर्डर लेवल. ओके, व्हाट इज 200? 200 को हम लोग ने एक नाम दिया विच इज कॉल्ड एज व्हाट? Reorder quantity. Don't say EOQ. Why we are not saying EOQ? यहां पे हम लोग ने ROQ लिखा. क्यों हम लोग ने EOQ नहीं लिखा? ROQ may not always be EOQ. सपोज आपका EOQ 1200 है. Can you order 1000? हम लोग ने इवेल्युएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर किया है. अभी फॉर एग्जांपल कंपनी बोलता है हमको EOQ नहीं करना है, जबरदस्ती है. वो लोग बोलेंगे ROQ is 1000. तो तुम बोलेंगे नहीं, हम पहले EOQ कैलकुलेट करेंगे और हम EOQ लेंगे. इज इट दैट? नो. सो हम लोग ने फॉर्मूला में क्या रखा है? ROQ. बोलो माइनस ये ब्रैकेट को बनाओ. विच कंजम्पशन? मिनिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम. ऑफ कोर्स यहाँ पे एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन डेज, तो हम डे लिख रहे हैं. अगर वीक रहेगा तो यू चेंज द लैंग्वेज एंड यू कैन राइट वीक. चलो 3 हम लोग ने फॉर्मूलाज बनाए हैं. विच आर द 3 फॉर्मूलाज? तीनों बिनो देखे फॉर्मूला बनाओ. बोलो विच वाज फर्स्ट लेवल? 3 लेवल हम लोग ने किया. विच वाज फर्स्ट लेवल? रीऑर्डर लेवल. फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. चलो सेकंड लेवल क्या था? मिनिमम लेवल. उसका और क्या नाम है? सेफ्टी स्टॉक. और 2 नाम है, बफर स्टॉक एंड बेस स्टॉक. फॉर्मूला बोलो. रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. एंड लास्ट लेवल जो अभी लेटेस्ट हम लोग मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक. मैक्सिमम लेवल का एक ही नाम है मैक्सिमम लेवल. व्हाट इज द फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड. सी आई थिंक मैंने सब फॉर्मूलाज लॉजिकली एक्सप्लेन किया है. नो नीड टू बाय हार्ट, बट तुम देख सकते हो जो भी कंजम्पशन है ना वो फॉर्मूला में एक ही बार आ रहा है. नहीं समझा मैंने क्या बोला? मैक्सिमम कंजम्पशन एक ही बार आ रहा है, एवरेज कंजम्पशन भी एक बार आ रहा है और मिनिमम भी एक बार आ रहा है, और उसका लीड टाइम उसके साथ ही आता है. यस और नो? वन वे टू रिमेंबर. दो, वी शुड नॉट बाय हार्ट, वी शुड रिमेंबर लॉजिकली. तो ये 3 लेवल तुमको हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, या 3 में से एनी 2 बोलेंगे. अभी कभी तुमको बोलेगा मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करो, तो मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए बोला तो भी तुमको ROL तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. वाई? फॉर्मूला में ROL है,
बोलेंगे कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल. इफ दे आस्क यू मैक्सिमम लेवल, स्टिल यू हैव टू कैलकुलेट विच लेवल. ROL, if of course ROL is not given in the question. Do you agree with this? चलो now हम आ जाते हैं फोर्थ लेवल ऑफ स्टॉक पे. एनीवेज बिफोर दैट अब हम नॉर्मल सिचुएशन में चले जाते हैं. सपोज दिस 244 every day will reduce by 12 and it reaches 84. What will happen at 84? Order will be placed. बोलो नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है? This 84 reaches how many units? 24. At 24 what happens? Order will be received. Again this 24 will go back to 224 and ये साइकिल चलते रहेगा. तो एट वन पॉइंट मेरा स्टॉक कितना है? एंड एट वन पॉइंट मेरा स्टॉक कितना है? 24. डू यू एग्री विद दिस? ओके. आई एम कैलकुलेटिंग नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टॉक, दैट इज नंबर 4. नंबर 4 इज कॉल्ड एज विच स्टॉक? एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक या एवरेज स्टॉक. एवरेज लेवल. आज के पहले क्या हमने ये टॉपिक में कभी भी एवरेज लेवल या एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किया है? What was formula for average stock? Q by 2. So can we say average level का formula will be ROQ divided by 2? Okay, मैं बता देता हूं. यहाँ पे मैंने लिखा भी था ROQ is nothing but what? Okay, ये एग्जाम्पल में मेरा Q कितना है? 200. Do you remember why we calculate average stock? क्यों कैलकुलेट करते हैं हम लोग average stock? What is the need to calculate average stock? One of the cost is related to average stock. Okay, which stock is related to average stock? Carrying cost. What is formula for carrying cost? Q by 2. हाँ, हम लोग ने किया हुआ है ये. एवरेज स्टॉक हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमारा वन ऑफ द कॉस्ट इज टोटल कैरिंग कॉस्ट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल कैरिंग कॉस्ट? out of which Q by 2 मतलब which stock? Average stock into C मतलब what is C? Carrying cost per unit per annum. तो ये दोनों को तुम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम. डू यू एग्री विद दिस? सो राइट नाउ अगर मुझे कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ऑफ कोर्स टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो आई रिक्वायर विच स्टॉक? मतलब वी आर कैरिंग दिस मेनी यूनिट्स इन स्टॉक ऑन एन एवरेज. तो तुम क्या बोलते हो? व्हाट इज हाउ मच इज ROQ इन अवर एग्जांपल? 200 डिवाइडेड बाय 2. सो 200 डिवाइड बाय 2. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, लेकिन मैंने ये एक्सप्लेन किया है. मेरा कभी स्टॉक 224 है, फिर 212 है, फिर 200 है, फिर 188 है, ऐसा या रादर ऐसा करके मेरा स्टॉक कम होते जाएगा. अगर मेरा स्टॉक कम होते जाएगा वो सब का मैं एवरेज लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? सी हियर, एट अ टाइम हमारा कितना यूनिट्स यूज हो रहा है. कभी मेरा स्टॉक 224 है, कभी मेरा स्टॉक 24 है, तो एज सच कंजम्पशन तो सिर्फ 200 यूनिट्स का ही हो रहा है ना. यस और नो. सो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं विच स्टॉक? एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक के लिए हम लोग ने क्या किया? 200 डिवाइड बाय 2. बट अब ये फॉर्मूला में हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस फॉर्मूला को. On an average, we are carrying 100 plus 24 units in stock. ये 24 units are which 24 units? 24 units को हम लोग ने एक नाम दिया है. This 24 units are called as which stock? सेफ्टी स्टॉक. ये 24 थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना पड़ेगा मेरे को, और अगर मैं थ्रू आउट द ईयर मेंटेन कर रहा हूं मतलब मेरे को ये 24 पे भी कैरिंग कॉस्ट करना पड़ेगा. यस और नो. तो पहले दो लेक्चर में Q by 2 क्यों था? पहले दो लेक्चर में Q by 2 इसलिए था क्योंकि पहले दो लेक्चर में यह अजम्पशन था दैट लीड टाइम इज 0. एंड इफ लीड टाइम इज 0, नो नीड टू मेंटेन सेफ्टी स्टॉक. आप सेफ्टी स्टॉक कब मेंटेन करोगे? When will you maintain safety stock? When there is lead time. अगर लीड टाइम नहीं है, मेरे को पता है सुबह ऑर्डर करूंगा शाम को आ जाएगा, तो सेफ्टी स्टॉक आप क्यों रखते हो? व्हाई यू कैन मेंटेन सेफ्टी स्टॉक? कि अगर लीड टाइम हो गया, एक आध दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो मेरे पास यूनिट्स होना चाहिए.
लेकिन आप सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन कर रहे हो। कब नहीं मेंटेन करोगे सेफ्टी स्टॉक? सेफ्टी स्टॉक विल नॉट बी मेंटेन्ड व्हेन there is no lead time, but now there is lead time, and when there is lead time I will maintain which stock. And if you maintain safety stock, you will have to carry safety stock, and then you have to incur carrying cost on safety stock. तो बोलो मेरा एवरेज स्टॉक कितना है? सी एवरेज स्टॉक का एक ही फॉर्मूला है, ये वाला। हम लोग का एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला नया नहीं है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। कल तक क्या था एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला? Q by 2, Q by 2 मतलब R O Q डिवाइड बाय 2, वही तो फॉर्मूला यूज किया, 200 डिवाइड बाय 2। सो मतलब हम लोग 200 डिवाइड बाय 2 दैट इज 100 यूनिट्स। ये यूनिट्स तो ऑन एन एवरेज मेरे को कैरी करना पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस वी विल हैव टू कैरी हाउ मेनी स्टॉक, हाउ मेनी यूनिट्स, सॉरी 24 यूनिट्स फॉर सेफ्टी पर्पस। मतलब यही क्वेश्चन में तुमको बोला कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 5 रुपया, तो 5 रुपया तुम कितना यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे? 124। यू आर नॉट कैरिंग ओनली 100 यूनिट्स, यू आर कैरिंग ऑन एन एवरेज 124, that is 100 plus 24, ये 24 यूनिट्स भी थ्रू आउट द ईयर तो कैरी करना ही पड़ेगा। yes, तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? ROQ डिवाइड बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल। ये डिवाइड बाय 2 के लिए ये पूरा डिवाइड बाय 2 नहीं है, मैथमेटिकली आंसर अलग हो जाएगा, आई होप यू नो दैट। तो यहाँ पे पूरे डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, ROQ डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम। दिस इज फोर्थ लेवल ऑफ स्टॉक। चलो कौन सा 4 लेवल है एटलीस्ट नाम बोलो, व्हाट इज द नेम? रीऑर्डर लेवल, सेकंड नो, सेकंड इज नॉट मैक्सिमम, मिनिमम लेवल, थर्ड मैक्सिमम है, लास्ट एवरेज, फोर्थ लेवल। एंड अब हम एक लास्ट लेवल कैलकुलेट करेंगे। लास्ट लेवल कैलकुलेट करने के लिए आई विल हैव टू गिव यू वन मोर इंफॉर्मेशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इमरजेंसी लीड टाइम। इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी लीड टाइम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमरजेंसी लीड टाइम? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीड टाइम? टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर। What is emergency lead time? इमरजेंसी में भी परचेस करेंगे ना तो कितना दिन लगेगा? 1 डे। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में रॉ मटेरियल आ जाएगा। इट विल टेक हाउ मेनी डेज? 1 डे, एक नाइट या 1 डे लगेगा परचेस करने के लिए। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक इज 224, ये 224 84 को टच कर गया। बोलो 84 पे क्या होगा? ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। 84 पे टच करने के बाद order will be placed. This order will touch how many units? At 24 what happens? Order is नहीं मिला, नहीं आया। नॉर्मली 24 यूनिट्स पे जब ऑर्डर या स्टॉक लेवल टच करता है रादर, तो हमको हमारा 200 यूनिट्स मिल जाता है, तो नहीं आया। इज इट पॉसिबल? हाउ? ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो गया, सप्लायर के उधर स्ट्राइक हो गया, ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक हो गया, सप्लायर बोला नहीं रॉ मटेरियल खत्म हो गया, व्हाटएवर XYZ रीजन, 24 यूनिट्स पे टच किया। व्हाट हैपेंस एट 24? एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए फैक्ट्री, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24 यूनिट्स पे जब टच करेगा तब ऑर्डर रिसीव हो जाना चाहिए। हम दरवाजे पे खड़े हैं, ऑर्डर नहीं आया, तो अभी तुम्हारे पास कितने दिन का स्टॉक है? 2 ही दिन का स्टॉक है। Within 2 days this will become what? 0. Do you agree with this? Okay, very simple. मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। Remember emergency purchase is 1 day. I am assuming कि ये सब जो डेटा है वो तुमको याद है। For example, yesterday evening, yesterday what was the date? 17th जून को 24 यूनिट्स टच कर गया, तो yesterday evening आ जाना चाहिए था 200 यूनिट्स, नहीं आया। 18th जून को और 19th जून को, कैन यू टेल मी 18th जून को हमारा स्टॉक कितना हो जाएगा? 12, एंड 19th को 0। इफ आई वांट टू इनिशिएट इमरजेंसी परचेज, इफ वी वांट टू इनिशिएट इमरजेंसी परचेज, तो कौन से दिन तक रुकना चाहिए? शुड आई वेट अप टू 18th, 19th के 17th को ही ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? कैन आई वेट अप टू 19th? 19th को 0 हो गया, बाद में हम जागे, फिर हमने जाके इमरजेंसी परचेज किया, तो भी मेरे पास 1 दिन का स्टॉक नहीं रहेगा।
सी इन फैक्ट्री इवन वन डे इज कॉस्टली, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर आर कमिंग इन द फैक्ट्री, एक दिन का तुम उसको वेजेस पे कर रहे हो, वर्कर को तो मजा आएगा, कुछ काम नहीं है क्योंकि मटेरियल नहीं है. सो टिल व्हाट डेट यू विल वेट? 18th. एट 18 मतलब 18 की शाम को कितना यूनिट्स टच कर गया? 12 यूनिट्स को जब ये टच करेगा, ये 12 यूनिट्स को जब टच करेगा तब हम जागेंगे एंड वी विल इनिशिएट विच परचेज? इमरजेंसी परचेज. सो दिस 12 यूनिट्स इज कॉल्ड एज अवर लास्ट लेवल, और नाम भी ऐसा ही है, दिस इज कॉल्ड एज विच लेवल? इमरजेंसी लेवल. इसका और एक नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंजर लेवल. Okay, can you frame formula for this 12 units? ये 12 units calculate करने के लिए we have taken which lead time? Emergency lead time. Emergency lead time is how many days? Emergency lead time is multiplied by which consumption? मतलब तुम वो एक दिन में कौन सा consumption assume कर रहे हो? एवरेज. आई रिपीट माई स्टेटमेंट, वो वन डे में यू आर अज्यूमिंग विच कंजम्पशन, कि वो जो एक दिन बचा है ना उसमें हम एवरेज कंजम्पशन करने वाले हैं. एक्चुअली तो स्पीकिंग उसके अंदर इमरजेंसी कंजम्पशन यूज करना चाहिए. अरे तुमको ऑलरेडी मालूम है तुम इमरजेंसी में हो, फिर भी नॉर्मल तरीके से खा रहे हो. मिनिमम नहीं, इट शुड बी इमरजेंसी. मतलब लिटरली स्टोर्स डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि भाई एवरेज लेवल सॉरी इमरजेंसी लेवल तक पहुंच गया है. होता नहीं तो भी हम 12 यूनिट ही खाएंगे. तुमको पता है कि तुम इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो तुम बोल सकते हो नहीं 5 यूनिट से हम काम चला लेंगे, या 7 यूनिट से 8 यूनिट से काम चला लेंगे, या 11 यूनिट से काम चलेंगे, वॉट एवर. दिस इज कॉल्ड एज विच कंजम्पशन? इमरजेंसी. तो वो वन डे में कौन सा कंजम्पशन आइडियली लेना चाहिए? इमरजेंसी. बट वो कभी नहीं दिया रहता है. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज अज्यूम विच कंजम्पशन? एवरेज. कि वो वन डे में एवरेज कंजम्पशन होगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? इमरजेंसी लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन, ऑफ कोर्स पर डे. तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वन डे into 12, that is 12 units. मतलब कंपनी सी व्हाट इज कंपनी डूइंग? कंपनी ये सब लेवल सेट कर रहा है. कंपनी ने क्या क्या लेवल सेट किया? दिस 244 was called as which level? 244 is called as which level? Maximum level. 84 is called as which level? Reorder level. 24 is called as which level? Minimum level. And 12 is called as which level? Emergency. Or it is called as which level? Danger level. मतलब you literally imagine कंपनी स्टोर्स में रॉ मटेरियल स्टोर कर रहा है, कंटेनर में स्टोर कर रहा है. वो कंटेनर पे ऐसा अलग अलग कलर का वो लोग ने पट्टी मार के रखा है, मतलब उनको दिख रहा है. सपोज वो कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, वो रॉ मटेरियल कम हो रहा है, जैसे ही वो ROL को टच करेगा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए. फिर वो ROL जैसे ही वो ग्रीन को टच करेगा नया यूनिट्स आ जाना चाहिए. जैसे ही हमने कंटेनर देखा और हमको दिख रहा है कि वो 12 यूनिट्स को टच कर गया है एंड अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, यू विल इमीडिएट इनिशिएट विच परचेज? इमरजेंसी परचेज. तुमने देखा कि भाई स्टॉक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है, इसके ऊपर अभी अगर इसके अंदर यूनिट डाला तो बाहर छलक जाएगा, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट इंडिकेट्स ओवर इन्वेस्टमेंट. I have answered my all the questions which I had mentioned in lecture number 1. What is our objective? कैसे मेंटेन करेंगे कंट्रोल? First of all, what is meaning of control? You have to minimize wastage. Number 2, minimize excessive investment. How will you minimize excessive investment? By calculating all these levels and EOQ. EOQ कैलकुलेट करो, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करो, मिनिमम मैक्सिमम ये सब लेवल्स कैलकुलेट करो. एंड देन थर्ड वाला तो हमने आज ही आंसर किया. व्हाट इज दैट? नंबर 3, एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. यू आर कैलकुलेटिंग रीऑर्डर लेवल टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल.
सोचो कंपनी अगर ये सब कैलकुलेट नहीं करेगा, सब राम भरोसे चल रहा है, तो एवरी टाइम क्या होता है कि वन प्रोडक्ट इज मिक्स ऑफ सो मेनी रॉ मटेरियल। अभी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम 5 या 6 या 8 रॉ मटेरियल मिक्स कर रहे हो, तो 8 रॉ मटेरियल के मेरे को ये कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, सो दैट हैव टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल। तुम्हारे घर पे सिर्फ दूध का टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं होता है, देयर आर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स, सो मेनी मटेरियल्स इन योर हाउस। नहाने का साबुन से लेके, टूथपेस्ट से लेके, चाय पत्ती से लेके, शक्कर से लेके, राइस से लेके, वीट से लेके, कितना रॉ मटेरियल, एक लिस्ट बनाओ, या कितना सारा मटेरियल है, कितना सारा इंग्रेडिएंट्स है तुम्हारे घर पे, वो सब चीज का क्या, ये सब तुम्हारे घर पे ओरली होता है, क्योंकि सब कुछ हमारे नजरों के सामने रहता है। और बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई ना कोई अलर्ट कर देगा, भाई ये खत्म हो रहा है, कोई बोलेगा ये खत्म हो रहा है, कोई बोलेगा वो खत्म हो रहा है। अच्छा घर पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज व्हाट इज जीरो लीड टाइम। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल तुम क्या बोलोगे, अभी बहुत जन का फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी रहेगा, फॉर एग्जांपल मेरे घर पे पॉलिसी है कि ये सब चीज डीमार्ट में से आता है, तो हम जाते हैं महीने में एक बार या 2 बार डीमार्ट में जाते हैं, उसमें डिस्काउंट अच्छा मिलता है, हम उठा के लेके आते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई चीज खत्म हो गया है, फॉर एग्जांपल ऑयल, चलो मैं ऑयल का एग्जांपल देता हूँ, तो ऑयल का यूसेज हम लोग नॉर्मली डीमार्ट में से कैन लेके आते हैं, तो ये लोग को पता रहता है बिकॉज दे आर कुकिंग इन द हाउस कि भाई अभी ऑयल खत्म हो रहा है, तो मेरा मदर विल स्ट्रेट अवे डीमार्ट जाना पड़ेगा, तो वो डीमार्ट जाने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। तो क्या वो इंस्ट्रक्शन व्हेन इट इज जीरो तब आएगा? अच्छा चलो जीरो पहुंच गया तो क्या होगा, तो तुरंत डीमार्ट में जाना पड़ेगा। अब मैं लेक्चर छोड़ के तो डीमार्ट में जा नहीं सकता है, तो बोलेगा अभी नया नियर बाय स्टोर से लेके आ, नियर बाय स्टोर से लेके आ, तो वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा मेरे को, यू हैव टू इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये सब कंपनी में पहले से प्लान रहता है, यू हैव टू प्लान ऑल द लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। अच्छा मैक्सिमम लेवल के ऊपर क्या मतलब, क्या रखने के लिए जगह नहीं है, मतलब देयर इज ओवर इन्वेस्टमेंट। अच्छा उसके ऊपर कौन सा कॉस्ट लग रहा है, कैरिंग कॉस्ट। बाय द वे कैरिंग कॉस्ट तुम्हारे घर पे भी लगता है, वो बता रहे तुम कैलकुलेट नहीं करते हो, यही चीज जो तुमने एक्स्ट्रा भर के रखा है वही तुम जाके इन्वेस्ट कर दोगे, तो उसमें तुमको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हम घर पे समझा समझा के थक गए, लेकिन नहीं समझते हैं। हम लोग जाते हैं डीमार्ट में, बोलता है मेरा ये बोला है उठा लेना, मतलब काय के लिए उठा लेगा, 100 रुपया उसका, बोलता है 100 रुपया ही तो है, तो तुरंत मेरे दिमाग में क्या आता है, कैरिंग कॉस्ट। अब तहाँ पे उसको थोड़ी लेक्चर देगा, फॉर एग्जाम्पल उस दिन कुछ स्कूल का सीजन चालू होता रहेगा, तो बैग में कुछ सेल रहेगा, अभी स्काई बैग डीमार्ट में कुछ 300 या 500 रुपये मिल रहा था, तो मैं भाई 2 ले लूं क्या, मतलब क्यों अभी तो एक ही चाहिए ना, बोले नहीं ये फट गया तो दूसरा वाला यूज करेंगे। मतलब तेरे को क्या लगता है कितना साल चलेगा, बोले 1.5-2 साल तो चलना चाहिए, तो देखेंगे ना 2 साल के बाद, तो अभी से मैं क्यों एक्स्ट्रा 500 रुपये डालू उसमें, कैरिंग कॉस्ट। स्मॉल एग्जाम्पल्स यू कैन लर्न दिस चैप्टर, ये डे टू डे एग्जाम्पल है। यू आर ऑल्सो बाइंग, सब एक्सेसिव बाइंग, हम लोग बाय कर रहे हैं, जस्ट बाय करके रख दिया, कैरिंग कॉस्ट। सो वेरी सिंपल, हमको 5 लेवल पढ़ना है। व्हाट इज दैट 5 लेवल्स? बाय द वे ये सब लेवल तुम घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए ये सब तुमको डेटा चाहिए भी, आप तो सीख के गए हो, तो बोलो चलो सब चीज का मेरे को कंजम्पशन बताओ। अरे तो तेरा ऊपर वाला डेटा ही गलत है ना मेरे भाई, तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है, सडनली थोड़ी सपना आएगा कि अभी 1-3 दिन है। अरे हाउ कैन डेंजर लेवल, अरे तू वापस एबनॉर्मल सिचुएशन का बात कर रहा है सर, हाउ कैन आई कंसीडर एबनॉर्मल सिचुएशन। आप एस्टिमेशन कौन से चीज का कर सकते हो, नॉर्मल, एबनॉर्मल सिचुएशन का कैसे कर सकते हो? आई कैन नॉट डू एबनॉर्मल सिचुएशन का। एबनॉर्मल सिचुएशन का अगर करने जाएंगे तो आप एक भी लेवल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। वर्ल्ड लेवल पे अगर शॉर्टेज हो गया तो मेरा ही नहीं बाकी सबका भी लग गया है ना। सो शॉर्टेज इज एक्सेट्रा, वो सब इज नॉन कंट्रोलेबल, इट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में वो हम कंसीडर करेंगे फैक्टर्स। चलो ऑल 5 लेवल्स यूज करके लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। अरे 1 सीनियर स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके रख देंगे। हाँ अगर तुम्हारा ये जो 6 ये जो इंफॉर्मेशन है ये चेंज हुआ तो रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर तूने कोई नया रॉ मटेरियल ऐड किया तो उसके लिए कैलकुलेट। लेकिन ये सब कैलकुलेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करके रखना, हमें एवरी ईयर ड्यूरिंग द ईयर थोड़ी चेंज करते रहेंगे ये सब, अनलेस ये डेटा में कोई मेजर चेंज है।
और जनरली होता नहीं है क्योंकि ये सब केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी तेरा मैक्सिमम कंजम्पशन तूने 14 रखा है, सडनली आके तूने बोल सकता नहीं अभी 16 लग रहा है, देन योर कैलकुलेशन विल गो हेवायर, सब रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन, क्योंकि उसके बेसिस पे तूने स्टोर्स खरीद लिया रहेगा या रेंट पे लिया रहेगा, सडनली तू 3 महीने बाद वापस थोड़ी स्टोर्स का जगह बढ़ा पाएगा। ये जो भी मैं लास्ट 1 घंटे से बोल रहा हूँ वो 2 पेजेस में लिखा हुआ है, सो वेन एवर यू गेट टाइम गो थ्रू दोज 2 पेजेस। Moral of the story, you have to remember formulas. Sometimes they may ask you theory question. What is reorder level? What is difference between reorder level and reorder quantity? ऐसा कभी भी पूछ सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 6, रीड क्वेश्चन नंबर 6 एंड बाजू में पेंसिल से तीनों चारों का आंसर लिखो या पांचों का। In question number 6, requirement part number 1, what are they asking you to calculate? Reorder quantity. What will be the reorder quantity? EOQ या Q. तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है Q या EOQ कैलकुलेट करने के लिए what do we want? 3 वेरिएबल चाहिए, which are those 3? How much is A? How many say A is 5,000? Why A is not 5,000? ये क्या है 5,000 यूनिट्स पर मंथ, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पर एनम में, तो हाउ मच इज ए 60,000, वो भी रॉन्ग है बिकॉज हम खाली फर्स्ट लाइन में 5,000 और पर मंथ पढ़ेंगे वो अच्छा नहीं है। ये किसका है पर, हमको जो ए चाहिए दैट शुड बी फॉर रॉ मटेरियल, तो इसको हम लोग रॉ मटेरियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो तो पूरे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। यस, वी हैव टू यूज विच कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन। व्हाट इज दिस एवरेज कंजम्पशन? 275 kgs पर व्हाट पर वीक, किधर दिया है एवरेज कंजम्पशन बीइंग 275, बस ऐसे ही बोला। ये सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इज गिवन पर वीक, so average consumption per week is 275, this will be multiplied by how many weeks? 52, so average consumption 275 into 52 is how much? 14,300 kgs, ये हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ओके, सब में आर्ग्यू क्यों एवरेज लिया, कोई बोलेगा हाँ मिनिमम लेना चाहिए, कोई बोलेगा मैक्सिमम लेना चाहिए, इसलिए तो एवरेज ले रहे हैं। सब में से मिनिमम लो, कोई बोलेगा मैक्सिमम लो, तो हम एवरेज इसलिए तो ले रहे हैं। सो बोलो ए का कैलकुलेशन कितना? 275 kgs पर वीक इंटू 52। अगर फर्स्ट रॉन्ग है ना तो सेकंड तो फिर भी सही हो जाएगा, फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा और फिफ्थ रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन। ओके, राइट डाउन नंबर 1, रीऑर्डर क्वांटिटी। नंबर 1, रीऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखो ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखो ROQ। नेक्स्ट लाइन में लिखो इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखो EOQ। एक लाइन छोड़ के, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट स्टार्ट द आंसर डायरेक्टली, हमको पहले ए एस और सी को डिफाइन करना पड़ेगा, इनफैक्ट ए तो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, ए इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू 275 kgs per week into 52 weeks. 275 is which consumption?
average 275 kgs per week into 52. Next line is equal to 14,300 kgs. Okay, next line S equal to what is definition of S? Ordering cost per order. Like S is equal to ordering cost per order. Next line, yeah, maybe same line is equal to rupees 100 per order. Next line C equal to, okay, C is to be calculated. पहले C का definition लिखो. C is equal to carrying cost per kg per annum. Carrying cost per kg per annum. Next line is equal to carrying cost percentage per annum into purchase price per kg. Carrying cost percentage per annum into purchase price per kg. Next line equal to 20% per annum. How much is purchase price per kg? 10. 20% per annum into rupees 10 is equal to rupees 2 per kg per annum. नेक्स्ट लाइन एक लाइन में भी छोड़ के आर ओ क्यू इक्वल टू ई ओ क्यू इक्वल टू ओके राइट द फॉर्मूला फॉर ई ओ क्यू बाद में सब्सटीट्यूट करो. आई थिंक आंसर इज इन डेसिमल्स. अगर डेसिमल है तो वी विल राउंड ऑफ ऑन विच साइड? हायर साइड. Square root of 2 into 14,300 into 100 divided by 2. 1195 पॉइंट. हाँ तो पहले वो लिखो. पहले वाला आंसर लिखने का 1195 rather 0.8 equal to 1196 kgs. Okay, so we have completed the first one. एक लाइन छोड़ के write down number 2. Reorder level. बोलो what formula you will use for reorder level? Reorder level next line equal to, yeah, next line में equal to बोलो what is the formula? Maximum consumption इस बार क्या लेंगे? Maximum consumption per what? Week. Maximum consumption per week into maximum lead time in weeks. यहाँ पे हम days में नहीं लिख सकते because data is given in weeks. Maximum consumption per week into maximum lead time in weeks. So next line is equal to 450 kgs into ये 4 to 8 weeks मतलब क्या? How much is minimum? 4 and maximum. अच्छा लीड टाइम के लिए दूसरा क्या लैंग्वेज ये लोग ने यूज किया है? रीऑर्डर पीरियड. रीऑर्डर पीरियड भी बोलते हैं इसको, डिलीवरी पीरियड भी बोलते हैं, लीड टाइम भी बोलते हैं. अदर different names. 450 kgs into 8 weeks. बोलो what is the answer? 3,600 क्या rupees kgs. Okay, next number 3, minimum level. What are other names for minimum level? Safety stock, base stock, buffer stock. What is the formula? Minimum level. Next line is equal to reorder level. अगर तुमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है ना तो सेकंड पार्ट में रीऑर्डर लेवल के बाजू में ब्रैकेट में ROL लिख दो. So next line is equal to ROL माइनस बोलो विच कंजम्पशन इनटू विच लीड टाइम. ब्रैकेट ओपन करो पहले. यू कैन राइट इट वेरी सिमिलर टू जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, बट यहाँ पे डे की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? वीक. रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन पर वीक इनटू एवरेज लीड टाइम इन वीक्स. We calculated reorder level. How much is reorder level? Yes. $3,600
माइनस हाउ मच इज एवरेज कंजम्पशन 275 इंटू, अच्छा अभी 6 कहीं पे भी दिया नहीं है, हाउ डू यू कैलकुलेट 6? हाँ सो ऐसा इंटू 6 करो, 6 को ऐसा एक एस्ट्रिक मार्क कर दो और उसी लाइन में थोड़ा जगह छोड़ के 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1950 क्या kgs. Next, number 4, maximum level. Maximum level, let us write the formula. चलो maximum level का formula क्या है? ROL plus ROQ minus minimum consumption per week into minimum lead time in weeks. ROL we calculated 3600. ROQ also we calculated 1196. Minimum consumption and minimum lead time is given in the question 100 and 4 weeks. Into 4. What is the answer? 43. Okay, next. Can you tell me एवरेज स्टॉक का हम लोग ने क्या फॉर्मूला या एवरेज लेवल का फॉर्मूला हम लोग ने एक्सटेंड किया है? व्हाट इज द न्यू फॉर्मूला फॉर एवरेज लेवल? ROQ upon 2 plus minimum level. फॉर्मूला लिखने के टाइम यू शुड बी वेरी केयरफुल. ये जो डिवाइड बाय 2 है ना, वो पूरा न्यूमरेटर को नहीं है, खाली ROQ अपॉन 2. ROQ वी हैव फाउंड आउट 11 अपॉन 2 प्लस बोलो how much is minimum level? 1950. What is the answer? 254. Okay, so that is end of question number 6. Take question number 7. We will solve question 7, बाद में हम लोग ब्रेक लेंगे. क्या भी लेना है क्वेश्चन 7 करने के बाद? चलो, faster you solve, faster will get break. From the details given below, calculate. So they are asking us to calculate 4 levels: reorder level, maximum level, minimum level and danger level. Reordering quantity is to be calculated on the basis of following information: cost of placing purchase order 20, number of units to be purchased during the year 5000, purchase price 50 rupees, annual storage cost is 5 rupees, details of lead time, average, maximum, minimum and emergency purchase, rate of consumption, average 15 units per day, मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे. बताओ कौन सा कंजम्पशन नहीं दिया है? मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया है. बाकी ऑल डेटा इज अवेलेबल. कैन यू टेल मी स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कैन आई कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल? रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या है?
विच कंजम्पशन इनटू विच लीड टाइम. चेक करो. इज मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन. हाउ मेनी यूनिट्स? 20 units per day. Into is maximum lead time given. How many days? So can we calculate reordering level? तो करो. Number one, reordering level. Next line is equal to, okay, this time what we will write, day के week, day. यहाँ पे write this formula, reordering level. वो लोग ने reordering लिखा है तो तुम भी ordering लिखो. Maximum consumption per day. Formulas are compulsory. Don't ask this question. Formula नहीं लिखा तो कितना मार्क्स जाएगा? Maximum consumption per day into maximum lead time in days. Okay, next line is equal to 20 into 15. 20 into 15 is equal to 300. किसमें है? यूनिट्स है कि केजीज है? क्या है? यूनिट्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट. व्हाट इज नंबर 2? एक मिनट, दो लिखो मत. मैक्सिमम लेवल. कैन यू टेल मी मैक्सिमम लेवल में व्हाट इज द फॉर्मूला? ROL. डू यू हैव ROL? ओके, नेक्स्ट क्या होता है? डू यू हैव ROQ? नो. ROQ का हम लोग को नोट बनाना पड़ेगा. ओके, माइनस व्हाट? मिनिमम कंजम्पशन. डू यू हैव मिनिमम कंजम्पशन? नो. एंड इनटू मिनिमम लीड टाइम. डू यू हैव मिनिमम लीड टाइम? यस, 5 days. वो दिया है. तो दो चीज मिसिंग है. व्हाट आर द टू थिंग्स मिसिंग? ROQ, that is reorder quantity या reordering quantity. And second, तो लिखो note. Note 1, calculation of reordering quantity. इसी के नीचे चालू हो जाओ. नोट. बहुत सारे इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखो तो नोट से ही चालू होता है. क्या हुआ? लिखो बिंदास. आंसर लिखा है ना, वो इंपॉर्टेंट है. मार्क्स देने का तो देने तो नहीं दे. अरे इंस्टीट्यूट का बहुत सारा सॉल्यूशन वर्किंग नोट से ही चालू होता है. आप देख लो स्टडी मटेरियल एक्सेट्रा. तो मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग में कि मैं लाइंस काउंट करूं बीच में साथ? अरे सच बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है. इतना ओपनली बोल रहा है अभी. इसमें क्या अभी? तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सोल्यूशन? मतलब आप सोच रहे हो कि मैं लाइन छोड़ो, बाद में लाइन कम मिला तो ठीक है, वो एक पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे लिखो नोट. लिखो ना भी, क्या मैं बोल रहा हूँ लिखो. Which one? Rate of consumption में नहीं. What is formula for average? हाँ, हाँ पर वैसे ही ढूंढेंगे, लेकिन उसका नोट तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? बट पहले हम रीऑर्डरिंग क्वांटिटी ढूंढ रहे हैं. नोट्स तो. और दूसरा कौन सा तरीका है मिनिमम ढूंढने का? तुझे क्या लग रहा है मैं क्या देने वाला था? नोट 1 लिखो. कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी. भाई जिसको डाउट है ये समझ लो कि हम एग्जाम सोल्यूशन के बाद लिख रहे हैं. बस बीच में तुम बाद में तुम्हारे हिसाब से फ्लो बना देना. कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी. अच्छा, सपोज इसमें नोट नहीं लिखना है, ऐसा बीच में नोट नहीं लिखना है. कैन यू टेल मी दूसरा सोल्यूशन? पेशेंस नहीं है तो इसमें नोट लिखने का जरूरत नहीं है. सेकंड हेडिंग देने का मैक्सिमम लेवल, फिर उसके नीचे ए बी सी कर लेने का. ए रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, बी मिनिमम कंजम्पशन, एंड सी मैक्सिमम लेवल. ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा. तुमको नहीं सुनना है तो मेरा गलती है. कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी. मतलब बताओ तो भी प्रॉब्लम, नहीं बताओ तो भी प्रॉब्लम. किसको डाउट कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ में है. मतलब आप मुझे डाउट कर रहे हो ऐसा मुझे लगा. मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे. लिखो कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी. लिखो, चल दिया. नेक्स्ट लाइन.
अभी चलो ए एस और सी तीनों दिया हुआ है, कैन यू सी? ए कितना है? 5000। एस कितना है? 20। और सी कितना है? 5। सो यू कैन डिफाइन ए एस और सी, या डायरेक्टली तुम लिख सकते हो। डायरेक्टली कैसे लिखने का? सो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखो आर ओ क्यू, नेक्स्ट लाइन में लिखो आर ओ क्यू इक्वल टू ई ओ क्यू इक्वल टू, अब एक स्क्वायर रूट का साइन बनाएंगे बट वो बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा इसी में लिखने का 2 इंटू एन्युअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। So substitute, get the answer. And note number 2. Well, what is the answer for reordering quantity? 200 क्या? 200 elephants units. लिखो ना हर time answer 200. Don't give answers which are given by calculator. 200 units. चलो एक लाइन छोड़ के नोट 2. तुम लोग ने फाउंडेशन का एग्जाम पेपर बराबर से क्वेश्चन पेपर पढ़ा? फाउंडेशन का एग्जाम दिया ना तुमने? हाँ। फर्स्ट पेज पे वो लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, वो पढ़े थे जनरल इंस्ट्रक्शन? वेरी गुड। हाँ, नोट्स टू बी पार्ट ऑफ योर आंसर। वो लोग ये नहीं बोला वेयर, notes are part of my answer. If you want me to give me after the solution, please specify after solving the fair solution. अरे बहुत सारा क्वेश्चन नोट से ही चालू होता है, उसके बिना मैं क्वेश्चन फेयर सोल्यूशन लिखूं कैसे? अच्छा, फेयर सोल्यूशन की जगह कितना छोड़ू? व्हाट इज देयर इंस्ट्रक्शन? नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर. इज इट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर? यस. वेयर वो नहीं स्पेसिफाई किया ना तुमने. हाँ, लेकिन ये तुम किसी के साथ झगड़ा कर नहीं पाओगे. चलो नेक्स्ट, नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कंजम्पशन पर डे. एग्जाम हो गया है, अब जाके जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना ताकि तुमको याद है कि ऐसा कोई पाप तुमने कर तो नहीं लिया है. दैट मे बी वन ऑफ द रीजन. कैलकुलेशन टू इंप्रूव, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कंजम्पशन पर डे. हाँ भाई, ये कोई मेथड समझा रहा था, तो आर वी फॉलोइंग हिज मेथड, कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका है? हिज मेथड. ओके. सो एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पर डे इज इक्वल टू पूरा लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे प्लस मिनिमम कंजम्पशन पर डे डिवाइड बाय 2. Average consumption is 15 units per day. Maximum consumption is 20 units per day plus
नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट आंसर लिखो. Therefore, minimum consumption per day is equal to how many units? 10 units. Okay, now we will calculate which level? Maximum level. We can now calculate maximum level. That is number 2. एक line छोड़ के number 2. Maximum level. We will write the formula. यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ऑफ कोर्स. आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस, बाय द वे एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी अलाउड नहीं है तो फुल फॉर्म लिखना. आर ओ एल प्लस, ये तो हम लोग ने हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग ऊपर शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहे हैं. एग्जाम में ये सम, एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन आने वाला है कि एक ही आएगा, एक ही आएगा ना, तो फॉर्मूला पूरा लिखने का. बट इट इज बीन ऑब्जर्व जनरली, अब ये लोग ये सब जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना वो लोग एमसीक्यू में पूछ रहे हैं. तो एमसीक्यू में फटाफट हो जाता है ना, खाली कैलकुलेट करके मार्क करो. तो वी शुड प्रे कि ये एमसीक्यू में है. थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस अब ये लोग एमसीक्यू में पूछने के लिए चालू कर. हाउएवर ऐसा कोई रूल नहीं है, डोंट गो विथ प्री माइंडसेट. आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर डे इंटू मिनिमम लीड टाइम इन डेज. Let us substitute ROL. I think we found out 300, 300 था कि 200, 300 plus ROQ 200 था, I think so. Minus minimum consumption अभी अभी हमने ढूंढा 10 and minimum lead time is given, that is 5. चलो solve this, get the answer. What is the final answer? 450 units. Next. नंबर 3 मिनिमम लेवल. कैलकुलेट करने से पहले सोचो, डू वी हैव ऑल द वेरिएबल्स. मिनिमम लेवल के अंदर क्या चाहिए? आर ओ एल. वी हैव एवरेज कंजम्पशन है और एवरेज लीड टाइम. चलो राइट द फॉर्मूला, गेट द आंसर. मिनिमम लेवल अंडरलाइन नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू आर ओ एल माइनस average consumption per day into average lead time in days. ROL we calculated is 300 in or minus average consumption is 275 into average lead time. Sorry, not 275. The last question. ROL is 300 minus average consumption is 15, 15 into 10. So 300 minus 15 into 10 is 150. 150 units. So last one, danger level. First and last question जिसमें हम danger level calculate कर रहे हैं. Danger level बहुत rarely पूछते हैं but हमको फॉर्मूला आना चाहिए. बोलो danger level का फॉर्मूला क्या था? Emergency lead time into average consumption per day. Both is available. Emergency purchases के लिए they have given 4 days. Danger level emergency lead time into average consumption per day. Emergency lead time is 4 days into average consumption 15 units per day. So 60 units is danger level. Okay. That is end of question 7.